اسی حوالہ کو پھر ایک بار پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے بات، یہ کلام ذہن نشین ہو کہ سید صاحب نے کیا آج آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی۔ متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 19ویں آیت میں پھر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ خداوند اس کلام پر پڑھے جانے سنے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع فلپی کے علاقہ میں گئے اور وہاں انہوں نے جو اپنے شاگردوں سے ایک بات کی اور پوچھا کہ آپ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو جو یوحنا رسول تھے وہ کہتے ہیں کچھ مختلف قسم کے نام جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ تو جو ایلیا آنے والا ہے وہ ہے، کوئی کہتے ہیں یرمیہ نبی ہے، کوئی کہتے ہیں کوئی اور نبی ہے۔ لیکن پھر ایک اور شاگرد کو کہتے ہیں تو اس نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ اور جب شمعون پطرس کی جو اس وقت پطرس نہیں تھا، یسوع نے جب اسے بلیس کر دیا، برکت دی، تو پھر خداوند نے اس کا نام جو ہے چینج کر کے پطرس رکھا، شمعون پطرس۔ تو شمعون جو پطرس تھے وہ بول اٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ جب یسوع نے اسے پوچھا کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں، تو یسوع نے اسے کہا، پطرس نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، المسیح، تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو یسوع نے آسمان اسی وقت اس کو جواب دیا کہ تو مبارک ہے، کیونکہ یہ باتیں تجھے میرے آسمانی باپ نے جو ہے وہ تجھ پر ظاہر کی ہیں، اور تو یہ اس لیے یہ بات کی ہے۔ تو پھر خداوند اسے برکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عالم روا کے دروازے جو ہیں وہ تجھ پر جو ہے وہ غالب نہیں آئیں گے، اور میں جو کلیسیا بناؤں گا وہ تو ایک پتھر ہے، تجھ پر میں ایک کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے تجھ پر غالب نہ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ کہنے کے بعد خداوند نے اسے کہا، ایک ڈیوٹی سونپی اور کہا کہ میرے پاس جو کنجیاں ہیں، آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ہیں، وہ میں تجھے دیتا ہوں، اور جو کچھ تو سے جو مراد ہے، تو اس وقت جتنے بھی وہاں شاگرد تھے ان سب کو یہ اختیار دیا گیا۔ اس وقت کہا یسوع نے کہ تو جو آسمان پر زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھا جائے گا، جو زمین پر باندھے گا کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نے کیا باندھنا ہے، زمین پر کیا باندھیں گے جو آسمان پر باندھا جائے گا، اور زمین پر کیا کھولیں گے جو آسمان پر کھولا جائے گا۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم نے جو پہلے باندھنے کی بات کرتے ہیں، یہ باندھنا کیا ہے؟ میرے عزیزو، جو انسان پر لانتے ہیں
पर बांधना है। जब हम उन लानतों को जमीन पर बांधेंगे तो वो आसमान पर भी बांधी जाएंगी, जिनमें ये गंदी और नापाक रूहें हैं जो इंसानों के अंदर घुस जाती हैं और घुस कर वो और किसी जगह पर रहना पसंद नहीं करती। जो लोग खुदा के नाफरमान लोग होते हैं, जो खुदा की कवानीन पर अमल नहीं करते, उनके अंदर वो अबलीसी कुत्तें रहती हैं और उन अबलीसी कुत्तों को हमने बांधना है, बीमारियों को बांधना है, वबा को बांधना है और नबरती को बांधना है और हर तरह की जो इंसान के अंदर बुरी ख्वाहिश पैदा करने वाली चीज है उसको बांधना है, ताकि जब हम जमीन पर उसको बांधेंगे तो वो आसमान पर बांधी जाएगी। हालेलुया। तो मेरे चीजों आप गौर करें, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी गंदी तस्वीरें हैं, गंदी बीमारियां हैं, गंदी लानतें हैं जो आज भी हम लिए हुए चलते और फिरते हैं। क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि हर बार वही बात दोहराएं, क्योंकि पिछले इतवार नहीं बल्कि मंगल याहूद का वक्त था, तो वहाँ भी पास्टर साहब ने जो बिशप साहब ने जिक्र किया, फिर मैंने भी बार बार जिक्र करता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो इंसान को नापाक करती हैं, जो इंसान के दिल को नापाक कर देती हैं, रूह को नापाक करती हैं, उन चीज़ों को जो है वो बांधना है। वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और खुदा भी इस बात को जानता है कि इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी लानतें हैं जिसकी वजह से ये नापाक हो जाते हैं। वो खुदा भी जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम जानते बूझते हुए भी, समझते हुए भी, जी शऊर रखते हुए भी हम फिर जिस तरह नभाई हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है, हम फिर उसी तरह दलदल की तरफ चले जाते। और उन चीज़ों से जब हम परहेज करेंगे, उन चीज़ों से जब हम किनारा करेंगे, जब हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करके खुदा की तरफ आएंगे, तो मेरे जीवन हम उस चीज़ को ज़मीन पर पाएंगे। एक ताला दिया हुआ है खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को कि उस ताले, उस चाबी को जब ताले के अंदर घुमाएंगे तो बांधी जाएगी और वो आसमान पर भी बांधी जाएगी। मेरे चीज़ों, इसी तरह हननिया और सफीरा ने जो रसूलों के अमाल में बहरहाल 6 और 7 में इसका जिक्र है, तो वहाँ लिखा है कि पहले हननिया फिर सफीरा दोनों ही बहुत। उस वक्त ये था कि शागिर्द अपने माल और दौलत जायदाद बेच कर, आज अगर हम कहें तो हम नहीं बेचते, लेकिन ना ही हम गरीबों की खिदमत करते हैं, ना ही हम खुदावंद के घर में देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कि हम में वो इब्लीस की कुव्वत समा गई है, वो रहती है, जिसने डरावा दे दिया हुआ है कि ये अगर हम करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हम क्या करेंगे। मेरे चीज़ों, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कलीसिया की तामीर और तरक्की हो रही थी, कलीसिया बन रही थी, तो उस वक्त लोग अपनी अपनी चीज़ें, अपना अपना सामान, अपने अपने घर, अपनी अपनी जायदाद बेच कर मसीह के लोगों को जो उस वक्त शिद्दत की जरूरत में, जिनको सताया जाता था, तंग किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, उनकी परवरिश के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हननिया और सफीरा ने भी जो इसी तरह इरादा किया कि हम भी अपनी ज़मीन बेचकर
जो है रसूलों के कदमों के नीचे रख देंगे और जहाँ भी वो इस्तेमाल करे वो करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसमें मुशावरत की और थोड़ा सा हिस्सा बीच में से रख लिया। जब रख लिया तो वापस आए, उनके पास आए तो पतरस ने कहा, हनन्याह, क्या इतने की बिकी है? उसने कहा, हाँ आपका इतने की बिकी है। उस्ताद इतने की बिकी है। तो वो उसी तरह रख करके गिरा और मर गया। फिर उसके बाद उसकी बीवी आई तो उसको भी उसने पूछा कि क्या ये जमीन इतने की बिकी थी? तो उसने भी कहा, हाँ जी इतने की बिकी है। तो पतरस ने कहा, तुमने क्यों एकता कर लिया है? तुमने क्यों झूठ बोला है? तुमने क्यों पाखू के साथ, तुमने क्यों खुदा के साथ झूठ बोला है? और ये जमीन इतने ही की बिकी है। अभी वो दफनाने वाले दफना कर मुश्किल से उसके पास पहुंचे थे तो वो भी उसको भी उठाकर ले गए। मेरे चीजों, ये पतरस के वसीला से उन्होंने झूठ बोला और पतरस ने बात की और उस चीज को बांधा और आसमान से, ये आसमान पर पहले ये बात तय हो चुकी और उन्होंने मरना ही था, क्योंकि उन्होंने खुदा तो दिलों और दुखों को जानता है और खुदा ने जान लिया था कि ये लोग मेरे साथ झूठ बोलेंगे और जब पतरस पूछेगा तो फिर ये बांध देगा। तो मेरे दिल, जब उसने जमीन पर उनको बांधा और वो आसमान का भी बांध दिया। तो इसी तरह जब हम मज़ीद आगे बढ़ के देखते हैं तो तरह तरह के जो हमें बहुत साफ मिलते हैं और हमें बातें कलाम में मुकम्मल तौर पर गवाही की मिलती है। तो मेरे दिल, जब हम उन बातों को मानते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे खादमीन जो हैं, जिनमें एल्डर्स, डीकन, पास्टर्स और कलीसिया के मेंबर, जिन पर खुदावंद का मसा है, जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, जो वो उनके पास ये इख्तियार है, उनको पूंजी दी गई है रसूलों के वसीला से, खुदा के वसीला से उनको पूंजी दी गई है और वो पूंजी जो है वो लगाते हैं और उन बदबूओं को, उन बीमारियों को, उन मुसीबतों को, परेशानियों को बांधते हैं और फिर वो इंसान आज़ाद हो जाता है। फिर वो गवाही देते हैं कि अभी बेटा ये गवाही दे रहा था कि ये क्या, ये माजरा जो हुआ ये जिस भी वजह से हुआ, लेकिन इनके वसीला से ये गवाही आ रही थी, होना था ये काम, और जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। और ये उनके लिए ये मुसीबत उन पर आनी थी और ये मुसीबत बांधी जानी थी और बांधी गई है। और अभी आपने गवाही सुनी है कि उसकी हड्डियों जो कचरे अंदर चले गए थे सर के अंदर, वो उन्होंने क्या कहा है कि अब वो नॉर्मल है, अब वो ठीक है। हालेलुया, नाम की जलाल के लिए जोरदार तालियां। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने बांधना है, अब हमने देखना है कि खोलना क्या है। मेरे चीजों, जब ये बरकतें और सरफराजियां हमने खोलनी है, किन पर? अपने खुदा के लोगों पर, क्योंकि वो मुसीबत में फंसे हुए थे तो उनकी मुसीबतों को आदमी ने बांध दिया। अब बारी है कि हम उन मुसीबतों को बांध कर उनके लिए सरफराजी के दरवाजे खोलें, उस ताले को खोले, उस हाथ को मांगे, उस बरकत को मांगे जो आसमान से खुदा देता है। उसको मांगते हैं तो फिर शिफा हो जाती है। शिफा जब होती है तो ताला खुल जाता है, कुंजी लगती है, ताला खुल जाता है, फिर लोग शिफा पा जाते हैं। मेरे चीजों, वो लड़की जो ऐन फेल वक्त पकड़ी गई थी, उसको जो खुदावंद ने कहा कि
तुझ पर किसी ने भी नहीं कोई ऐब लगाया, कोई इल्जाम लगाया, तो वो खामोश खड़ी रही। खुदा ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अजीजों, यीशु ने खुद कुंजी लगाई और उसके गुनाह माफ कर दिए। मेरे अजीजों, जब हम किसी मुसीबत ज़दा पर हाथ रखते हैं या हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो वो लोग जब बरकत पाते हैं तो खानदानों में सरफराजी आती है। मेरे अजीजों, जब हम किसी के लिए इज्जत के लिए दुआ करते हैं तो उसकी इज्जत बहाल हो जाती है। जब उसकी ड्यूटी बहाल हो जाती है तो वो उसके लिए वो दरवाज़ा खुल जाता है और उसके बाद अफसरान उसके लिए माइल हो जाती हैं। फिर उसी तरह प्यार करना शुरू हो जाते हैं और जब प्यार करना शुरू हो जाते हैं फिर बरकत पाकर खुदा के नाम को सलाम। फिर खुदा यीशु जब आसमान पर जाने वाले थे तो उस वक्त यीशु ने अपने 11 शागिर्दों को जो पहाड़ उनके लिए मुकर्रर किया हुआ था वहाँ उनको पहुँचने का हुक्म दिया था, तो वो वहाँ पहुँचे। वो पहाड़ ज़ैतून का पहाड़ था। वो ज़ैतून के पहाड़ पर गए और जब यीशु आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो उस वक्त यीशु ने जो है अपने शागिर्दों को बरकत दी और कहा कि तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। ये उनको पूंजी दी, इख्तियार दिया कि सब कौमों को, एक नहीं, सिर्फ मसीहियों को दोबारा बार बार बपतिस्मा नहीं देना है, बार बार मसीहियों को बार बार बपतिस्मा नहीं देना है, बल्कि उनके पास भी जाना है जिनके लिए हुक्म है कि सब कौमों के पास जाओ। मेरे लोग, मैंने उस दिन जिस दिन कुरान की शुक्रगुजारी थी एक बात सीखी। उन्होंने बिशप साहब ने कहा, बात लंबी नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने कहा कि कैथलिक प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान इन्होंने कलीसिया को कुछ दिया और जिसकी वजह से आज हम एजुकेट होते हैं, जिसकी वजह से आज हम पढ़े लिखे कहलाते हैं और फिर जो है हम खादमीन बनते हैं। फिर जो ब्रदरन हैं, जो ये कह लें कि पेंटिकॉस्टल लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ कलीसिया को पानी और ऑयल दिया है ताकि हम चर्चों के अंदर पानी और ऑयल का बिजनेस करके अपनी आमदन को इजाफा कर लें और खुदावंद के हुक्म को जो है वो पीछे कर। तो यीशु ने कहा है, अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ जाकर सब कौमों को बपतिस्मा दो, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से वो बपतिस्मा लेना है और जो बपतिस्मा लेगा वो अच्छा होगा। तो मेरे चीजों, यीशु ने कहा कि तुम उनको ये बताना कि जो मैंने आपको हुक्म दिए हुए हैं उन पर अमल करना। जब आप लोग उन पर अमल करेंगे, उनको सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तो मेरे जो फिर आप आसमान की बादशाही की कुंजी खोलकर आसमान के नीचों में जाने वाले बन जाएंगे। मेरे चीजों, फिर खुदावंद यीशु ने जब उनको ये पैगाम दे दिया, खुदावंद यीशु आसमान पर उठा लिए गए। 10 दिन तक सारे शागिर्द, सालों से मेरा 11 शागिर्द और माँ मरियम की क़यादत में और दूसरे उनके साथ और शागिर्द लोग जो रहबाना यीशु के शागिर्द थे और वो लोग जो यीशु के कारबार हो चुके थे, वो सारी की सारी 120 की जमात बनकर एक बाला खाना के नीचे बैठी हुई थी। तो जब वो उनको पाक रूह का जामा मिल गया, वो बाहर निकले। उन्होंने बादशाही की जो कुंजी है, बादशाह के दरबार की कुंजी जो है वो लगाई, पतरस ने लगाई और 3000 शख्स जो थे वो ईमान ले आए और ऐसी कुंजी लगाई कि आज तक वो कुंजी बंद नहीं हुई।
बंद नहीं हुई, बल्कि काफिला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आसमान की बादशाही के लोग बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे अज़ीज़ों को मुझे और दूसरे खादमीन को, जितने भी खादमीन हैं, उनको ये इख्तियार दिया गया है कि जाओ, जाकर सब लोगों के सामने अंजीर की मनाही करो और जाकर उनको बाप, बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो। फिर हम आसमान की कुंजी लगाएंगे और वो लोग आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जमीन पर बांधें और जमीन पर खोलें, तो आज के बाद खुदावंद के साथ अहद करें। ऐ खुदावंद, जो चीज़ें बांधनी हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ, और जो चीज़ें खोलनी हैं उनके लिए मुझे कुव्वत दे, ताकि मैं वो बरकत पाऊँ और तुझे जला दूँ, और मेरे ख़ानदान के अंदर सरफराजी आ जाए, मेरे ख़ानदान के अंदर बरकत आ जाए, मेरी रोटी और पानी के अंदर बरकत आ जाए, मैं पूरी उम्र करके इस दुनिया से रुखसत हूँ। मेरे में लिखा है कोई 60, कोई 70, कोई 80 बरस, फिर भी कुव्वत हो तो आगे भी हम जा सकते हैं। कुव्वत हो तो 70 वर्ष भी करते हैं, कुव्वत हो 80 वर्ष करते हैं। अगर कुव्वत ना हो तो फिर हम 60, 55 भी कर लेते हैं। मेरे जो कलाम मुक़द्दस में कहीं नहीं लिखा है कि तुम आधी उम्र में सिर्फ शरीरों के लिए लिखा है कि वो आधी उम्र ना पाएंगे। आधी उम्र मुश्किल से पाएंगे, और वो आसमान पर जहाँ भी उनके लिए जगह है वो वहाँ पर खुदावंद आपको तौफीक बख्शे और कुव्वत बख्शे, ताकि हम सरफराजी पाएँ, ज़मीन पर खोलें, और ताकि हम बादशाही के मेंबर बनकर यीशु को जला सकें।